Good morning, students. Myself Anurag Singh. Today I am here in front of you with the topic integration. In the last two to three videos, I was discussed about the basic integration and integration by substitution. And today I am going to start the new part, which is what? Integration by trigonometric identities. Integration by trigonometric identities. Right now, कौन सा टॉपिक है बेटा? इंटीग्रेशन बाय trigonometric identities. Right now, which topic we are going to start? Integration by trigonometric identities. बेटा इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं. There are few formulas which are related to the integration by trigonometric identities. ध्यान दो. Next thing is what? In case of integration, we are going to solve with the help of integration of the types. इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप्स. इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप्स में क्या होगा कि अलग अलग टाइप्स के लिए मैंने अलग अलग फॉर्मूले हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं. वो पर्टिकुलर टाइप को पहचानना है आपको. पहचानने के बाद यू हैव टू प्रोसीड फॉर दैट पार्ट एंड दैट फॉर्मूला. राइट ना. तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमारे लिए यही है कि सम को पहचानना है. अगर सम पहचान में नहीं आया, यू कैन नॉट एक्सप्लेन, you cannot solve your questions. The basic part of the integration is what? Question ko identify. How to identify the questions. And today we are here with the new part, that is integration by substitution. In case of integration by substitution, we are going to explain few parts of 11th standard, in which first formula sin 2x. What is the formula of sin 2x? Will you know? 2 sin x into cos x. क्या formula है बेटा? 2 sin x into cos x. Right now? And second formula is what? 2 tan x upon 1 plus tan square x. Second, cos 2x. What is the formula of cos 2x? Cos 2x is what? Cos square x minus sin square x. 1 minus 2 sin square x. 2 cos square x minus 1. And last, 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. Next, sin 3x. What is the formula of sin 3x? What is the formula of sin 3x? Hers. What is the formula of sin 3x? Yes. 3 sin x minus 4 sin cube x. And what is the formula of cos 3x? Chalo, next sum. What is the formula of cos 3x? The formula of cos 3x is what? Cos 3x के फॉर्मूले को हम लोगों ने सॉल्व किया है, कई बार सॉल्व किया है. cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फटाफट बताओ. इस बार कौन बताएगा? आदित्य. cos 3x 4 cos cube x minus 3 cos x. डन ना. ये इतने फार्मूले हैं जो बेसिक फार्मूले हैं जिनका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे. राइट ना. इन फार्मूले के यूज पे, इन फार्मूलों के वर्क पे आपको ध्यान रखना है. अब मैं आता हूं बेटा किस पे? क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे. कैसे सम सॉल्व करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन यू. राइट ना. सपोज आई हैव टेकन ए क्वेश्चन नंबर 1.
एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx राइट ना बेटा। देखो मैंने ऐसा साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया है? नहीं, I was never explained, right? No, the formula of sin square x. So we have no formula for that. तो हम साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। लुक हियर, यहां पे देख लो बेटा, साइन स्क्वायर है ना, अगर इस फार्मूले का मैं एक्सपेंशन करता हूं तो क्या बनेगा बोलो? 2 साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x. That means sin square x is equal to 1 minus cos 2x divided by 2. ये भी एक फार्मूले की तरह ही रीड कर लर्न करना। दैट इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। वो कौन सा फार्मूला है बेटा? 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया था। sin square x is what? 1 minus cos 2x divided by 2. अब अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos 2x लिखा है बेटा। दैट मीन्स जो भी एंगल यहां पे होगा उसका जस्ट डबल। If angle is here, this angle is x, then that angle is what? 2x. तो यहां पे भी एंगल कितना है? 2x प्लस 5, तो उसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 4x प्लस 10 एंड होल अपॉन 2 एंड देन dx. 2 इज द कांस्टेंट नंबर, डिनोमिनेटर में है बेटा, कांस्टेंट नंबर है, उसको हम क्या कर लेंगे? पुल अप कर लेंगे, बाहर आएगा तो दैट इज 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos 4x प्लस 10 एंड देन dx. Yes or no? That is 1 by 2 integral of 1 dx. ये एक काम करते हैं बेटा, इतना लंबा चौड़ा खींचते नहीं उसको, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व आएगा आंसर बेटा? दैट इज व्हाट? 1 by 2 ब्रैकेट व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1? दैट इज x माइनस cos 4x प्लस 10। अगर cos x होता तो क्या होता बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos x? दैट इज sin x. तो इसका भी हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? दैट इज 4 एंड लास्ट में क्या लग जाएगा बेटा? c. दैट्स योर आंसर। इज दैट क्लियर? आसान है ना? सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, यहां पे जो भी पावर गिवन होगा उस पावर से रिलेटेड फार्मूला यहां पे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उस फॉर्मूले को यूज करोगे, यूज करके सम को सॉल्व कर लोगे। डन ना? एक और सम लेते हैं, नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रल ऑफ साइन 3x इनटू cos 4x dx. इंटीग्रल ऑफ साइन 3x इनटू cos x 4x. अब बेटा इस सम को अगर मुझे सॉल्व करना है तो उसके लिए मुझे ध्यान दो, फिर से मैं अपनी पुरानी क्लास में आऊंगा, 11th स्टैंडर्ड की क्लास में बेटा। इन द 11th स्टैंडर्ड क्लास वन फार्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x। क्या फार्मूला था इसका? 2 साइन x इंटू कॉस x। कौन बताएगा? मानसी, मानसी चलो बोलो। 2 साइन x इंटू कॉस x का फार्मूला मानसी क्या है बेटा? इसका फार्मूला है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। यही फार्मूला है। क्या फार्मूला है बेटा? साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। अगर मैं यहां की बात करूं बेटा तो इस सम में 2 नहीं है। क्या नहीं है बाबू? 2 नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, 2 लगा के डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देता हूं। दैट इज 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। यही हो गया। अब तो आ गया ना 2, तो 2 साइन a cos b, वो फार्मूला लास्ट वाला अप्लाई कर देंगे बेटा। दैट विल बी व्हाट? 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ, आगे बोलो, चलो बोलो, 2 साइन a cos b, साइन a प्लस b, दैट मीन्स व्हाट? साइन a प्लस b 3x प्लस 4x dx माइनस, सॉरी प्लस साइन a माइनस b, दैट इज साइन 3x माइनस 4x
and sorry, and then dx sin a plus b plus sin a minus b. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगा बोलो? साइन 4 प्लस 3 7x प्लस साइन 3 minus 4 minus x and then dx. That can be written as 1 by 2 integral of sine 7x. Sine of minus x is minus sin x. माइनस साइन एक्स dx. फार्मूला बता दे रहा हूं बेटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. दैट इज अलाइड एंगल प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी? विच प्रॉपर्टी? अलाइड एंगल प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन राइट हियर 1 by 2 ब्रैकेट साइन 7x ना, that is minus cos 7x divided by the coefficient of x, that is 7, माइनस अगेन साइन एक्स इज व्हाट? माइनस कॉस एक्स. तो माइनस का और माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस कॉस एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज लास्ट में सी. दैट्स योर आंसर. इज दैट क्लियर? अब बेटा अगर मैं इसकी बात करता हूं, मैंने आपको किसने क्वेश्चन बताया? एक मैंने बताया किसका? स्क्वायर वाला, और एक मैंने क्या बताया? प्रोडक्ट वाला. हाउ मेनी क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें साइन किया कॉस, कोई भी रहेगा साइन के ऊपर भी और कॉस के ऊपर भी अगर स्क्वायर है तो ये फार्मूला दोनों में से ये वाला यूज होगा और वो फार्मूला आप अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो. राइट ना? दूसरा सेकंड क्वेश्चन आई हैव टेकन फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दिस इनटू दिस, देन फार्मूला इज व्हाट? इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच हैव पावर 3. नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 which contains power 3. अब देख बेटा क्या है, बहुत ही आसान है, टफ नहीं है, एकदम आसान आसान सा सम है. राइट ना? क्वेश्चन क्या है बेटा? इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब 2x plus 1 dx. इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब 2x plus 1 dx. राइट ना? अब ये सम सॉल्व करना है बेटा अपने को. क्यूब का तो फार्मूला फिर से नहीं है, तो देखो साइन के कौन से फार्मूले में क्यूब दिख रहा है? ये फार्मूले में. राइट ना? इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे बेटा? सिंप्लीफाई करेंगे. कौन से फार्मूले को? साइन क्यूब 3x वाले को. सिंप्लीफाई करूं, साइन 3x इज इक्वल टू कितना है बेटा? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. ट्रांसफर ले लो, 4 साइन क्यूब x is equal to 3 sin x minus sin 3x. 4 को शिफ्ट कर दे बेटा, sin क्यूब x is equal to 3 sin x minus sin 3x divided by 4. yes or no? That means sin क्यूब अगर है तो ये फार्मूले से हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो therefore I is equal to बन जाएगा साइन क्यूब ना, दैट प्लेस कैन बी रिप्लेस्ड बाई 3 साइन एंड x से x दोनों में है ना बेटा, तो x की वैल्यू दैट इज व्हाट? 2x plus 1 माइनस साइन 3x. जस्ट यहां पे जो एंगल रहेगा उसका ट्रिपल. ट्रिपल मीन्स ये, इसका ट्रिपल करोगे तो कितना आएगा बाबू? 6x plus 3 divided by 4 and then dx. यस और नो? समझ में आया? हाँ तन्वी, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 4 को बाहर ले लेंगे. तन्वी, इज दैट क्लियर? Therefore I is equal to 1 by 4 integral of 3 sin 2x plus 1 minus sin 6x plus 3 dx. ओके, इनको बेटा ब्रैकेट में क्या किया हमने? क्लोज कर दिया, बिकॉज एक जगह सिंगल प्लेस पे dx नहीं लगाना है, या तो दोनों पे लगाओ या तो फिर दोनों को क्या कर दो? कंबाइंड कर दो. अब अगर कंबाइंड कर दिया है तो फाइनल आंसर लिखने. Therefore I is equal to 1 by 4 bracket 3 is your constant number, then this is like same into sin of 2x plus 1. तो फॉर्मूला लग जाएगा sin x का बेटा, that is what? माइनस cos, तो माइनस को लिख दिया मैंने कहा आगे, cos
2x plus 1 divided by the coefficient of x, that is 2. अगेन माइनस, अगेन साइन का लगेगा बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड cos 6x plus 3 divided by coefficient of x, that is what, 6, and last में c. That's your answer. Is that clear? सिंपल है. बस आपको क्या करना है ना बेटा, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे बस आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर दें कि फंक्शन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और वो पर्टिकुलर बेसिक फार्मूला उसको हमको क्या होना चाहिए, मैच करता हुआ मिल जाए, तो हमारा सम सॉल्व होने में टाइम नहीं लगेगा. डन? आसान है. चलो एक और इसी खुशी में एक सम और लेते हैं. हाँ, आसान है, इस खुशी में एक सम और लेते हैं बेटा. सम है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. गिवन दैट इंटीग्रल ऑफ 1 minus cos x divided by 1 plus cos x dx. What is given? 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. आपको याद करवा दो बेटा, लर्न भी रख लो. ये फॉर्मूला है 1 minus cos थीटा is equal to 2 sin square थीटा. 1 minus cos थीटा is equal to 2 sin square थीटा by 2. कितना बेटा? 2 sin square theta by 2, and 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. ये दोनों फार्मूले आप अच्छे से याद रख लो. क्लियर? 1 minus cos theta, that is 2 sin square theta by 2, and 1 plus cos theta, that is 2 cos square theta by 2. अगर मैं यहां पे अप्लाई कर दूं वो फार्मूले को, तो क्या बन जाएगा बोलो? 1 minus cos x, that is 2 sin square x by 2 divided by 1 plus cos x, 2 cos square x by 2, and then dx. 2 finished. Sin square upon cos square, that can be written as tan square x by 2 dx. बेटा कल की डेट पे मैंने बताया था tan के ऊपर अगर स्क्वायर लग गया, लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने, तो रिप्लेस tan square is always replaced by sec square minus 1, right now? So therefore this will be written as sec square x by 2 minus 1 and then dx. Yes or no? अब sec square x by 2 का इंटीग्रेशन, sec x का नॉर्मल है बेटा, that is tan x by 2 divided by कोएफिशिएंट ऑफ x. x का कोएफिशिएंट कितना है बाबू? 1 by 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x एंड लास्ट में c. ये 2 ट्रांसफर हो जाएगा, कहां आएगा? ऊपर आएगा. बात समझ में आई? 2 ट्रांसफर होके कहां लाओगे आप? ऊपर लाओगे, तो ये बन जाएगा 2 tan x by 2 minus x plus c. That is your final answer. Is that clear? Any doubt? चलो बेटा, इसी खुशी में नेक्स्ट सम, और भी एक सम लेते हैं बेटा. टफ नहीं है, बस प्रॉब्लम किस चीज की है वो मैं आपको बता रहा हूं. आप फार्मूले को लर्न नहीं करते हो बेटा. अच्छी बात है कि मैथ में कोई चीज लर्न नहीं करनी पड़ती है, ज्यादातर चीजें कॉन्सेप्चुअल होती हैं, बट ये भी नहीं कर सकते हो कि 100% लर्न नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, 20% ही लर्न करना पड़ेगा, बट 20% तो लर्न करना पड़ेगा ना आपको. उस 20% को अगर आप लर्न नहीं करोगे तो यू कैन नॉट सॉल्व. अगर 20% आपके मेमोरी में फीड नहीं रहेगा तो आप हमेशा परेशान होते रहोगे. क्लियर? चलो इसी खुशी में सम नंबर 9 लेते हैं. कौन सा सम लिया बेटा हमने? 9. इंटीग्रल ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1 plus cos x dx. What can we do here? cos x ऊपर है बेटा, और नीचे कितना है? 1 plus cos x. इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, राइट? Which formula we can apply here? Cos x can be written as the first formula of cos x. So look here, cos square x, cos 2x is what? Cos square x minus sin square x.
अब अगर उसी फार्मूले को हम यहां पे अप्लाई कर दें तो cos x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2, बिकॉज एंगल हाफ हो जाता है। जो भी मेन एंगल होता है ना उसका हाफ एंगल यहां पे रहता है, इसीलिए इसको ना 11th में जब पढ़ाया गया था तो हाफ एंगल फार्मूले के नाम से पढ़ाया भी गया था। कौन से फार्मूले के नाम से पढ़ाया गया था बेटा? हाफ एंगल फार्मूला। तो हाफ एंगल जब हाफ हो गया डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस 1 प्लस cos x, सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 1 plus cos x can be written as 2 cos square x by 2 or no dx। अब इसको क्या करेंगे बेटा? हम लोग सेपरेट कर देंगे, एक्सप्लिट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सप्लिट करेंगे तो दैट कैन बी रिटन एज cos square x by 2 divided by 2 cos square x by 2 minus sin square x by 2 divided by 2 cos square x by 2 dx। Yes or no? Here cos square x by 2 cos square x by 2 cancelled, that is 1 by 2 minus 1 by 2 tan square x by 2 dx। Yes or no? बोल बेटा। अब अगर मैं चाहूं तो 1 by 2 को क्या कर सकता हूं? कॉमन ले सकता हूं। क्या बचेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 dx। यस और नो? अब tan आ गया बेटे, tan वो भी किस में है? स्क्वायर में है। तो आई हैव टोल्ड यू कि tan स्क्वायर इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय sec स्क्वायर x माइनस 1, therefore that can be written as 1 by 2 integral of 1, look here, 1 minus tan square ना, that is sec square x by 2 minus 1 and then dx। अब ये स्मॉल ब्रैकेट जो कर्व ब्रैकेट है ना इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? बोलो फटाफट बोलो। that can be written as 1 by 2 integral of, look here, 1 minus sec square x by 2 1 minus sec square x by 2 plus 1 and then dx, 1 plus 1 2, that is 1 by 2 integral of 2 minus sec square x by 2 dx, that can be written as 1 by 2, what is the integral of 2? That is 2x minus sec square x by 2 is what? tan x by 2 divided by coefficient of x, x का coefficient कितना बेटा? 1 by 2 and then dx, ये 2 ट्रांसफर हो जाएगा, then 1 by 2 2x minus 2 tan x by 2 and then sorry plus c, right? 2 is taken common. If we have taken 2 as a common, then 2 into 1 by 2 into 2, right now? Taking 2 common, then x minus tan x by 2 and then plus c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। फाइनल आंसर x minus tan x by 2 and then plus c। अब इसी सम को ध्यान दो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल cos x का फॉर्मूला अप्लाई किया, cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2, डिनोमिनेटर दैट इज 2 cos स्क्वायर x by 2। Numerator contains 2 term and denominator contains 1 term, therefore separate it, separate कर दिया, 1 by 2 minus this 1 by 2, फिर 1 by 2 is taking as a common, then 1 minus tan square x by 2, और इंटीग्रेशन में tan square is always replaced by sec square minus 1, तो tan square x by 2 can be replaced by sec square x by 2 minus 1, फिर ब्रैकेट को ओपन कर दिया बेटा तो 2 sec minus sec square x by 2 आ गया। नेक्स्ट 2 into 1 का कोएफिशिएंट सॉरी इंटीग्रेशन x and sec square x by 2 is tan x by 2 divide by coefficient of x that is 1 by 2, मैंने 2 को ट्रांसफर लिया ऊपर के साइड, फिर कॉमन ले लिया बेटा, कैंसिल हो गया, जो फाइनल बचा वो हमारा आंसर। या फिर अगर हम चाहें तो इसी सम को एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, राइट ना, इनटू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x dx। क्या किया बेटा मैंने? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, क्या कर दिया? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ऊपर बन गया बेटा cos x इंटू 1 माइनस cos x
divided by 1 minus cos square x dx. Look here, a plus b, a minus b, that is a square minus b square. Identity लगा दिया algebra की, that is cos x into 1 minus cos x divided by sin square x dx. Yes or no? अब बेटा देखो, that can be written as what? Cos x minus cos square x divided by sin square x dx, which is written as cos x upon sin x into 1 upon sin x minus cos square x upon sin square x dx. Look here, सेपरेट किया बेटा, तो एक बार साइन एक्स अलग लिखा और एक बार मैंने क्या किया, अलग लिखा. बस इतना ही काम किया मैंने कि साइन को मैंने थोड़ा सा अलग अलग डिजाइन में लिखा. कॉस बाई साइन इज व्हाट? कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स एंड देन व्हाट बेटा? dx. अब सिंप्लीफाई कर लिया है ना, दोनों अलग अलग लिख लो बेटा. इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर x dx. अब सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर निकाल लो उसका. बेसिक है ना. cosec x into cot x डायरेक्ट फार्मूला है. cot स्क्वायर x इज रिप्लेस्ड बाय cosec स्क्वायर x माइनस 1. cot स्क्वायर x इज रिप्लेस्ड बाय, जैसे इसमें tan स्क्वायर x को रिप्लेस करते हैं ना बेटा, जैसे tan स्क्वायर x को रिप्लेस करते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 से, सिमिलरली cot स्क्वायर x इज रिप्लेस्ड बाय cosec स्क्वायर x माइनस 1. उसका आंसर अलग आएगा. इस आंसर से मैच करता हुआ इसका आंसर नहीं आएगा. मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, नहीं तो आप सब लोग सोचोगे कि इसका आंसर कुछ और आया, इसका आंसर कुछ और आया. तो डिपेंड अपॉन योर मेथड्स. जैसा एक्सपेंशन आप करोगे इंटीग्रेशन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या आएगा, आंसर आएगा. सो डोंट वरी, इट्स गेम. ओके, दोनों का आंसर करेक्ट है बेटा. आप चाहो तो ये वाला अप्लाई कर लो और फिर वो अप्लाई करोगे. बोथ आर सेम. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन न्यू सम. समझ में आया ना बेटे? रफ कर रहा हूं. हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर सम which is of the type sum number 13. Very important sum. Integral of cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha dx. Look, numerator can be written as cos 2x minus cos 2 alpha and denominator is written as cos x minus cos alpha. Numerator में जितने भी terms हैं, they contain double angle and denominator contains single angle. तो numerator को भी हम single angle में convert करेंगे by using that formula. Look here, cos 2x can be written as 2 cos square x minus 1. हाँ या ना? हाँ या ना? कौन बताएगा? कौन बताएगा? आदर्श, तुम बताओ बेटा. cos 2x can be replaced by 2 cos square x minus 1 or not? Yes ना? चलो, फिर cos 2 alpha can be written as 2 cos square alpha minus 1, same formula, divided by cos x minus cos alpha dx. Yes or no? Yes or no? Good. Then that can be, bracket open करेंगे बेटा, 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha plus 1 divided by cos x minus cos alpha dx. बेटा minus 1 plus 1 is cancelled. If they are cancelled and 2 is common between them, तो अंदर क्या बचेगा? cos square x minus cos square alpha divided by cos x minus cos alpha dx. Yes or no? Any doubt? Now use the identity a square minus b square.
If we are taking identity, then that can be written as 2 integral of cos x plus cos alpha in one bracket, and in other bracket cos x minus cos alpha divided by cos x minus cos alpha dx. फर्स्ट कंसेप्ट. फाइनली आपके लिए बचा क्या है? क्या बच रहा है बेटा? I is equal to 2 integral of cos x plus cos alpha dx. Yes or no? बोलो. That can be written as 2 integral of cos x dx plus integral of cos alpha dx, bracket close. That is 2 into integral of cos x dx, cos x dx plus, look here beta, इंटीग्रल ऑफ cos x dx. बेटा यहां पे ध्यान दो, थोड़ा सा गेम है, वो छोटा सा गेम है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, मिस कर देते हो, वो मैं समझा रहा हूं. लुक हियर, दिस इज cos x अल्फा and this is what dx, means integration of cos alpha with respect to x. दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, they are not matching. ये अल्फा का फंक्शन है and this is what function of x, means both have different variable. इसलिए इसको हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा? दिस cos alpha is taken as constant term. Is that clear? तो कांस्टेंट टर्म हो गया तो ये हो गया बाहर, बचा क्या? खाली 1 dx. क्लियर ना? दैट इज 2 ब्रैकेट cos x इज व्हाट? sin x प्लस cos अल्फा इनटू 1 का इंटीग्रल बेटा x, और लास्ट में क्या लग गया? c लग गया. राइट? इज दैट ओके? दिस इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन इन विच बेटा इन द गिवन सम्स मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे cos अल्फा की जगह पे sin अल्फा लिख के आंसर आ जाते हैं. याद रखो, इसीलिए ये सम्स बोर्ड में काफी बार पूछा गया है कि आप जो है उस टाइम को सॉल्व करने के टाइम पे आपके ध्यान में नहीं रहता और आप डायरेक्ट आंसर लिख के चले आते हो, सो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. राइट ना? सो बी केयरफुल अबाउट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स which you are doing in your exams and in your practice. Be careful about that part. Okay? Now, next sum, question number 14. Question number 14. Integral of cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x dx. What is given beta? Cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x dx. Is that clear? Is that clear or not? अब ध्यान दो मेरी बात पे. Cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x. How can we solve it? 1 देख रहे हो आप? 1 को एक्सपेंड करने जा रहा हूं मैं, गेम करूंगा मैं, क्योंकि मुझे ना डिनोमिनेटर कैंसिल करना है. कुछ ऐसा गेम करूं कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाए. तो गेम करने के लिए मैं क्या करूंगा? 1 का एक्सपेंशन करूंगा. लुक हियर, cos x प्लस माइनस sin x डिवाइडेड बाय एक्सपेंशन ऑफ 1, दैट इज व्हाट? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 1 के प्लेस पे क्या लिख दिया बेटा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. And this is what? sin 2x na? That can be written as 2 sin x into cos x and then dx. Yes or no? Therefore, that can be written as cos x minus sin x divided by cos x plus sin x the whole square dx. Yes or no? Yes or no? अब अगर मैं इसको t एज्यूम कर लूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने जा रहा हूं. विच मेथड? जोर से बोलो. विच मेथड? वी आर डूइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. पुट cos x plus sin x is equal to t. Then derivative of cos x is what? Minus sin x plus sin x is what? Cos x is equal to dt upon dx. ट्रांसफर ले लो बेटा.
then dx is equal to dt upon cos x minus sin x. Cos x minus sin x. Yes or no? Therefore, the sum is written as I is equal to integral of cos x minus sin x, cos x minus sin x divided by, look here, cos x plus sin x, na, that can be written as t. Therefore, this will be t square. T square into dx, which is replaced by dt by cos x minus sin x. dt upon cos x minus sin x. This and this is cancelled. Overall, I is equal to 1 upon t square dt. Function is of t. 1 upon t square का आंसर क्या होगा बेटा? बोलो, minus 1 upon t. क्या आएगा? 1 upon t square is what? Therefore, I is equal to minus 1 upon t plus c. I is what? Minus 1 upon t plus c. डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लास्ट क्लास में कम से कम 10 बार मैं आपको बता चुका हूं. 1 upon t square is what? Minus 1 upon t. Therefore, resubstitute value of t. Therefore, I is equal to minus 1 upon t is what? Cos x plus sin x. Cos x plus sin x and last में plus c. That is your answer. अगर हम इसको चाहेंगे ना तो और भी कई दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? तो एक मेथड सफिशिएंट है, एक मेथड मैंने बता दिया, एक मेथड से आप ट्राई करो. ओके, काफी आसान है बेटा, बहुत टफ नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन योर किस पे? ब्रेन पे. ठीक है, जितना अच्छा लगाओगे. याद है वो एक मूवी देखा था हम लोगों ने, 3 इडियट, जिसमें एक वो था जो 3 इडियट मूवी में जो वायरस का रोल किया था जिन्होंने, उन्होंने एक वर्ड बोला था कि जब गुस्सा थे वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, तो उस समय उन्होंने बोला दिस इज अनयूज्ड ब्रेन. याद आया? अनयूज्ड ब्रेन. तो ब्रेन इज अ थिंग, जितना आप इसको यूज करोगे उतना ये क्या होगा? एक्सपैंड होगा. अगर अनयूज्ड बनाओगे तो ये क्या कर जाएगा बेटा? समझ गए? अब आप मेरी बात आगे बोलने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझते हो. अनयूज्ड ब्रेन इज लुक लाइक, आगे नहीं बोलूंगा. नेक्स्ट सम नंबर 15. इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब 2x into sec 2x dx. सोचो, tan cube 2x into sec 2x dx. What can we do here? बोलो. tan cube 2x into sec 2x dx. What can we do here? This place can be replaced as tan square 2x into tan 2x into sec 2x dx. Yes or no? हाँ या ना? जल्दी बोलो. हाँ, चलो. Sec tan square is replaced by sec square 2x minus 1 into sec 2x into tan 2x dx. Yes or no? पक्का? अब अगर मैं बेटा sec 2x को t मान लूं, पुट कर दो बेटा sec 2x is equal to t. Then sec 2x का डेरिवेटिव sec 2x into tan 2x into 2 is what? dt upon dx. ट्रांसफर ले लेते हैं बेटा. Therefore dx is equal to dt upon 2 sec 2x into tan 2x. Therefore I can be written as I is equal to integral of t square. Look here, sec 2x can be written as t, na? Then this is what? T square minus 1 into sec 2x tan 2x, sec 2x tan 2x into again dx, which is replaced by dt upon
sec 2x into tan 2x फिनिश्ड। आगे 2 भी है बेटा। चलो ये 2 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। 2 is taken as common, therefore I is equal to 1/2 integral of t square minus 1 dt, which is written as 1/2 t cube minus t dt. Oh sorry, plus c, because integration of t square is t cube and integration of 1 is t. Done na? Resubstitute value of t, therefore I is equal to 1/2 t cube. What is t? Sec 2x na? Then that can be written as sec cube 2x minus t. That is what? Sec 2x and last is what? C. That's your answer. Is that clear? काफी कुछ चीजें हैं बेटा जो हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते थे, एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हाँ, और इसी के साथ आज की डेट की या आज की सभा समाप्त हुई। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। आपका कमेंट ही हमें ये बताएगा कि आप वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। सो कमेंट ऑन वीडियो of everyone is compulsory with your name, not with your Google ID. अपना नाम लिखोगे और उसके बाद उस पर कमेंट करोगे। क्लियर? आपका कमेंट ही आपका क्या होगा, अटेंडेंस माना जाएगा। अगर आप नहीं मानोगे, नहीं कमेंट करोगे तो हम ये समझेंगे बेटा you have not seen the video. Okay, bye bye, thank you.